Good morning, students. Today we are going to start new chapter, mechanical properties of the solids. हमने finish किया. I hope उसमें आपको कोई doubt नहीं है. I mean, 2 या 3 numericals मैंने homework दिए थे, right? So let's start for new chapter, and that is the last chapter. Okay, semiconductor. फाइनल एग्जामिनेशन में सेमीकंडक्टर इज एंड लास्ट चैप्टर जो सिलेबस इसके बाद में हमारा 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस फिनिश्ड हो रहा है. ओके, सो what you have to do is first note down the remote syllabus. Hello. Okay, students, so note down the remote syllabus. Page number 254. On page number 254, this semiconductor devices onwards, everything is removed. Okay, semiconductor devices onwards. But on page number 254, on left hand side, that static and dynamic resistance is there. That is a part of reverse bias actually. Okay, but this part is removed. Means page number 254 is completely removed. But on page number 253, the reverse bias that is there till that graph. Okay, 14.26 तक जो ग्राफ है वहां तक रिवर्स बायस है. 254 onwards it is removed. Okay, and semiconductor chapter mein the very first it is like some introduction is given, then electrical conduction in a solids, then 14.3 is the band theory of solid in a brief introduction. Among these all the points, what we have decided is key these things we will ask in exam, like from here onwards exam mein rahega, yahan ke onwards. This diagram ka explanation is over here. It is a page number 245. Okay, this is a page number 245. यहाँ onwards exam में रहेगा. और इसके पहले जो भी है that is very basic concept, जो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे बट मैं उसको पढ़ाऊंगी बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता भी होने चाहिए. तो उसके पहले वाला कुछ एज सच एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट जितना जरूरी है समझना वो सब कुछ मैं पढ़ाऊंगी उसमें. जो स्टार्टिंग का पोर्शन है लाइक इंट्रोडक्शन एंड बैंड थ्योरी एंड ऑल, उसमें से जितना भी जरूरत है वो सब मैं समझाऊंगी. बट एग्जाम में कहाँ से ऑनवर्ड्स आएगा? फ्रॉम पेज नंबर 245, that band theory. It is a part of band theory. It is a part of 14.3, right? But we will ask related to that diagram only. Okay, so let's start for the semiconductor. So very first there are basic 3 definitions. One is what is meant by conductor. Second definition is an insulator, and third definition is an semiconductor. Okay, so the conductor हम school days से पढ़ते आए. What is the conductor? Which carries the current is called conductor. Which does not carry the current is called insulator. और सेमीकंडक्टर तो अभी तक नहीं पढ़े, दैट वी विल सी इन दिस लेक्चर, राइट? सो जो अभी तक हम डिफाइन करते रहे एज एन कंडक्टर, लाइक विच कैरीज द करंट इज कॉल्ड कंडक्टर, तो उस टर्म में हमें इसको डिफाइन नहीं करना है इन 11th ऑनवर्ड्स, राइट? सो कैसे डिफाइन करना है? इन टर्म्स ऑफ बैंड गैप. नाउ व्हाट इज द बैंड गैप? दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वेरी फर्स्ट, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कंसिडर one atom randomly, silicon atom, suppose atomic number 14. So electronic configuration will be 284. I hope you know the electronic configuration. हम chemistry में पढ़ चुके होंगे electronic configuration क्या रहता है, और periodic table like atomic number and all. So silicon has an atomic number 14, so electronic configuration is 284, and 4 is a valence electron. If I draw the structure, it is like this is the nucleus which contain protons and neutron, and orbits are like this around the nucleus. In the first orbit, the capacity of electron is 2, which is completely filled. Second orbit, the capacity of the orbit is 8 electrons, which is again the completely filled. And the last orbit contains
4 electron which is not a completely filled because capacity इसकी ज्यादा है और यहाँ कितना है 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये completely filled नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। और उसके ऊपर जो भी बैंड रहेगा वो एम्प्टी बैंड रहेगा इन दिस वे, दिस इज द एम्प्टी बैंड, ओके। सो ये हो गया हमारा नॉर्मल किसी भी एटम का स्ट्रक्चर, राइट। आई मीन दिस इज फॉर सिलिकॉन रिस्पेक्ट टू एटम का अकॉर्डिंग टू रेयर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग टू। सो इन दिस यू शुड नो एज वी गो अप ऑर्बिटल एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, मतलब इसका ऑर्बिटल एनर्जी इसका ज्यादा रहेगा, इससे इसका ज्यादा, एज वी गो अप ग्रेटर हो जाएगा, राइट। तो एज वी गो अप ऑर्बिटल एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग। सो सपोज इसी डायग्राम को मैं ड्रॉ करूंगी अभी इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस। सपोज दिस इज माय फर्स्ट शेल, दिस इज दिस वन, ओके, which is completely filled, in which there are 2 electrons. So I'm writing this is the first shell which is completely filled. Second is in this, second orbit is in this, which is again completely filled, जिसमें 8 electrons है, ठीक है। तो मैंने ऐसे दिखाया। Third orbit is in which there is a valence band, a valence electron, so this is called valence band, okay. This is third, which is on valence band. Valence band means which contain valence electron, okay. And after valence band there is one band which is then called conduction band, which is called conduction band. So remember students, when electron acquired energy, because मैंने क्या बोला, as we go up from the nucleus orbital energy क्या होता है, goes on increasing, तो इसका ऑर्बिटल एनर्जी ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल इसका ऑर्बिटल एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ऐसे ऑर्बिटल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। सो फॉर एग्जाम्पल इफ द इलेक्ट्रॉन इज इन वैलेंस बैंड, ओके, सो अगर इलेक्ट्रॉन को जंप करना है इन द कंडक्शन बैंड, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ही वो वैलेंस बैंड में रह सकता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो इसी बैंड में रहेगा, ओके। अगर वो 2 से अगर 1 में जंप कर रहा है तो वो एनर्जी एमिट करेगा और उसकी 1 इतनी एनर्जी हो जाएगी, राइट। सो if the electron wants to jump from valence to conduction band, तो उसको एनर्जी एक्वायर करनी पड़ेगी, उसको गेन करनी पड़ेगी, then it can jump from valence band to conduction band. And you know the conduction band, अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, it means that it is a free and it can carry the current, right? So for the flow of current, the electron should be in a conduction band, right? तो यहाँ जो है इन दोनों के बीच में, वैलेंस बैंड के बीच में और कंडक्शन बैंड के बीच में जो रहेगा एनर्जी गैप, वो है जैसे 1 इलेक्ट्रॉन होल का 2 - 3, राइट, 1 इलेक्ट्रॉन होल का, तो उसको बोलते हैं हम एनर्जी गैप, एनर्जी गैप और फॉरबिडन एनर्जी गैप, ओके। So based on this energy gap, we are going to define all this term, like what is the conductor, what is the insulator and semiconductor. Okay, so very first till this समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। It is just simple thing कि as we go up, orbital energy goes on increasing, जितना ऊपर ये वाला इसका ऑर्बिटल एनर्जी ज्यादा रहते हैं, इनका फिर कंपैरेटिव डिक्रीज होता है, राइट। एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स वांट टू जंप फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन हैज टू गेन द एनर्जी, राइट। And when it is in conduction band, it means that the electron is free and it can carry the current, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? Students, semiconductor chapter is very important, not only 11th point of view but 12th point of view, because 11th का okay, see, this semiconductor is very important, ठीक है। पहले तो इतना समझ जाओ कि 12th में भी एक सेमीकंडक्टर चैप्टर है। अगर आपको ये 11th का सेमीकंडक्टर समझ में नहीं आया तो 12th में कुछ नहीं समझ में आएगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, बिकॉज इसके प्रैक्टिकल्स रहेंगे आपको 12th में, उस पर वाइवा रहेगा। तो अगर वाइवा रहेगा तो ये 11th स्टैंडर्ड वाले ये क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे, बिकॉज दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ दिस सेमीकंडक्टर। अगर आपको जानना है लाइक इलेक्ट्रॉनिक, अभी इसका जो एप्लीकेशन है, मेन एप्लीकेशन, इट गोज इन इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली। डायोड कैसे बने हैं, एलईडी कैसा बना है, ट्रांजिस्टर कैसे बने हैं, वो वर्क कैसे करते हैं, हमारे हाउस होल्ड सर्किट्स में कौन कौन से डिवाइसेस हम यूज करते हैं, फिर वो वर्क कैसे करते हैं, दैट ऑल यू आर गोइंग टू स्टडी right from this semiconductor, right? So semiconductor is a very basic part,
So you should know this, what is the semiconductor. Okay, I'm going to repeat this. See, मैंने जैसे एक सिलिकॉन एटम कंसिडर किया, so electronic configuration is 284, so outermost electron is 4. First orbit is completely filled, second orbit is completely filled, third orbit in which the valence electron are present, that is called valence band, and above that there is a conduction band. Same structure I have drawn over here. This is the first, which is completely filled, second completely filled, valence band. This is the third orbit, which is the valence band, in which the valence electrons are present, and above that there is a conduction band. As we go up, orbital energy goes on increasing. Okay. So if electron wants to jump from a valence band to conduction band, electron has to gain the energy from somewhere, and it can jump into the conduction band. Because उस इलेक्ट्रॉन का 4 इलेक्ट्रॉन होल्ड इतना एनर्जी रहेगा तो ही वो कंडक्शन बैंड में रह सकता है. अगर उस इलेक्ट्रॉन का 4, दिस इज एन एग्जाम्पल, मतलब मैंने एग्जाम्पल लिया है, वैल्यू में वेरी. तो मान लो अगर 3 इलेक्ट्रॉन होल्ड इतना अगर वैलेंस बैंड में रहता है, तो मतलब उतनी ही एनर्जी से वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहेगा. तो वो पर्टिकुलर बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनका एनर्जी सेम रहेगा, right? And as we go, that band energy or orbital energy will goes on increasing. So if the electron gain the energy from the valence band and jumps in a conduction band, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, and that free electron can conduct the current. Okay, यहाँ तक हमने देखा. Now generally what we define as an conductor, like which carries the current, is called conductor, right? तो यहाँ जो रहेगा in terms of band gap आपको define करना पड़ेगा. So if I say conductor, so this is my valence band, और उसके नीचे of course हमारे completely filled shells रहेंगे, present रहेंगे, तो ठीक है. और इसका conduction band जो रहता है वो almost see, band means nothing but this orbits. ठीक है, जैसे पहला ऑर्बिट है, ये मेरा पहला ऑर्बिट है जिसमें कंप्लीट, मैंने इसे डिनोट ऐसा किया, शो ऐसा किया, यही डायग्राम है. ठीक है, ये कंप्लीटली फील्ड है मतलब ये है, ये कंप्लीटली फील्ड है मतलब ये है, ये वैलेंस है मतलब ये है, राइट? और ये कंडक्शन है मतलब ये है. तो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन करनी पड़ेगी. अब जब इधर जंप करेगा कंडक्शन में तो ये फ्री होगा और ये कैरी करेगा करंट, बस इतना ही है. ठीक है, सिर्फ दिखाते वक्त मैंने ऐसे दिखाया है, यही डायग्राम. ठीक है, तो अभी मान लो कि ये मेरा कंप्लीटली फील्ड है, मतलब ये ऑर्बिट है, अब ये वैलेंस बैंड है सपोज, और ये कंडक्शन बैंड है. तो अभी इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप रहता है, जैसे कि मैंने क्या बोला, ऑर्बिटल एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है. हर एक ऑर्बिट का एनर्जी रहता है, पर्टिकुलर एनर्जी रहता है. जैसे मैंने इधर अज्यूम किया कि इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है. ठीक है, तो ऑर्बिटल एनर्जी इंक्रीज होता है ऑलवेज एज वी गो अप फ्रॉम द न्यूक्लियस. तो इन कंडक्टर this valence band and conduction band are nearly merged. Okay, these are the nearly merged together. मतलब अगर एनर्जी गैप ही नहीं तो उसको इजीली जंप कर देगा कंडक्टर में. ठीक है, तो इसमें एनर्जी गैप ही नहीं रहती है, वो नियरली मर्ज रहता है, तो उसको बोलते हैं कंडक्टर. सो हाउ विल यू डिफाइन कंडक्टर ओवर कि व्हाट इज द कंडक्टर? द कंडक्टर इन विच द एनर्जी गैप is nearly zero or they are merged together, that is called conductor. Second is an insulator. इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, लाइक दिस इज सपोज फील्ड एंड दिस इज सपोज वैलेंस बैंड. तो ये जो एनर्जी गैप रहेगा Eg, which is called forbidden energy gap or energy gap. So this energy gap will be more than 3 electron hole. 3 electron hole से greater रहेगा तो हम क्या बोलते हैं, that is an insulator. जैसे diamond is an insulator, in diamond it's a 5 electron hole इतना gap रहता है. Okay, so electron has to gain more energy to jump from valence band to conduction band. ज्यादा गैप रहेगा, ज्यादा एनर्जी लेना पड़ेगा, तो इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, राइट? सो ये हुआ कंडक्टर इन विच इट इज मर्ज टुगेदर, इजीली जंप कर सकते हैं, नो एनर्जी गैप. तो कंडक्टर इजीली करंट कैरी करता है, राइट? बट इंसुलेटर इजीली करंट कैरी नहीं करता है, बिकॉज इसमें क्या है, एनर्जी गैप ज्यादा है, सो इलेक्ट्रॉन हैज टू गेन मोर एनर्जी. नाउ व्हाट इज सेमीकंडक्टर? What is semiconductor? So semiconductor means whose properties lies between insulator and conductor. Semiconductor means whose properties lies between conductor and insulator. That is called semiconductor. Means
लाइक इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं एनर्जी बैंड बोलूं तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में लेस एनर्जी गैप रहेगा, मतलब इधर जैसे मर्ज रहता है, इधर मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन होल्ड रहता है, तो इधर नियरली 1 इलेक्ट्रॉन होल्ड इतना एनर्जी गैप रहेगा। इन दोनों के बीच के प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इफ यू विश टू डिफाइन द सेमीकंडक्टर, द डेफिनेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर इज सेम लाइक दिस: द सेमीकंडक्टर whose properties lies between insulator and conductor is called semiconductor, that way only. The most famous semiconductor is silicon and germanium. ओके, तो यही सेमीकंडक्टर है, उसका यूज करके डिवाइसेस बनते हैं, लाइक डायोड्स, एलईडी, ट्रांजिस्टर एंड ऑल। तो कैसे बनते हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हम सिंपल डायोड तक इस चैप्टर में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं, और उसी डायोड का यूज एज एन रेक्टिफायर कैसे होता है, या जीनियर डायोड एज एन वोल्टेज रेगुलेटर कैसे यूज होता है, या फिर ट्रांजिस्टर एज एन स्विच एंड एज एन एम्पलीफायर कैसे यूज होता है, तो वो सब हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो बट 11th स्टैंडर्ड का दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आपको बेसिक बहुत अच्छे से दिमाग में चला जाएगा ना, ओके दिस इज द थिंग जो डायोड में होता है, तो आपको वो वर्किंग समझना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। सो रिमेंबर दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, 12th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो ये हुआ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द सेमीकंडक्टर, ठीक है। नाउ विल सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सो सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स, वन इज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर and another one is an extrinsic semiconductor. Nearly you can say nearly in between them, जैसे मैंने 1 इलेक्ट्रॉन होल्ड बोला कि you can say less than 3 इलेक्ट्रॉन होल्ड, but they are not merged together more than 1 इलेक्ट्रॉन, तो उतना एनर्जी गैप रहता है in the semiconductor. Small than that of like a small than that of insulator, but greater than that of conductor. It is not written anywhere exactly, but silicon के लिए 1.12 है और germanium के लिए 0.66 है। तो दोनों क्या है, हमारे सेमीकंडक्टर है। तो आपके टेक्स्ट बुक में टेबल 14.2 देखो, तो ये अप्रोक्स 1 इलेक्ट्रॉन होल्ड बोला मैंने एवरेज में, बट मटेरियल टू मटेरियल ऑलवेज इट इज वेरी। तो अगर आप आई विल शो यू जस्ट अ मिनट, ये देखो एनर्जी गैप्स दिए हुए इधर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज एन सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन में 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जर्मेनियम में 0.66 है, ठीक है। डायमंड इंसुलेटर है जिसका 5 है। तो मतलब ऑन एन एवरेज, जैसे एग्जैक्ट एक वैल्यू नहीं रहती उसकी, ठीक है, मटेरियल के हिसाब से रहती है। तो बट इट इज लाइक अ लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन होल्ड यू कैन से, और ग्रेटर देन कंडक्टर। कंडक्टर तो क्या रहता है, मर्ज रहता है, तो उससे ग्रेटर ऐसे बोल सकते हैं। Okay, so there are two types of semiconductor. One is an intrinsic semiconductor and another one is an extrinsic semiconductor. So very first, what is meant by intrinsic semiconductor, that we will see. Intrinsic semiconductor is a pure type of semiconductor. Pure semiconductor means in which only the semiconductor is present. For example, जैसे मैंने बोला कि silicon and germanium is an most famous semiconductor. I am considering here silicon. So silicon atomic number 14. So these are the 4 outermost electron of the silicon. If it form the bond with the neighboring silicon atom, तो ये neighboring silicon atom से covalent bond form कर रहा है, ठीक है। तो similarly this structure is continue. Every silicon atom क्या करेगा, अपने नेबरिंग सिलिकॉन से बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ऐसे स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहेगा जिसमें सिर्फ सिलिकॉन एटम है और कुछ नहीं है, राइट। तो इसको बोलते हैं हम प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। दिस इज द प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये स्ट्रक्चर जो है ऐसे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहेगा हमारा। जैसे मैंने इधर देखा कि ये सिलिकॉन अगर देख रहे हो तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसके,
ये 4 इलेक्ट्रॉन उसने नेबरिंग सिलिकॉन से जो है बॉन्ड फॉर्म किए हुए, तो ऐसे ही इधर भी एक सिलिकॉन रहेगा, ऐसे ही वो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो एवरी सिलिकॉन क्या करेगा, अपने नेबरिंग सिलिकॉन से बॉन्ड फॉर्म करेगा। दिस इज द प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। आई कैन से हियर द number of electron is equals to number of hole means positively charged, ठीक है। होल मीन्स पॉजिटिवली चार्ज। अभी मैं ये समझा दूंगी आपको, ये समझ में भी आ जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल क्या होता है, ठीक है। ये है प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। जो दूसरा टाइप बनता है वो बनता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। Extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor is an impure type of semiconductor in which we add the impurities. Based on that, ये क्या होता है, impure होता है, इसमें impurities add करते हैं। Based on that, there are two types, p-type semiconductor and n-type semiconductor. तो एक्सट्रिंसिक के दो टाइप बनते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ इन पी टाइप सेमीकंडक्टर लाइक अ सेम जैसे मेरा ये सिलिकॉन एटम था, राइट। यहाँ क्या किया मैंने, 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेमीकंडक्टर फॉर्मिंग द बॉन्ड विद द नेबरिंग 4 इलेक्ट्रॉन। जो मैं स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ की वो मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूँ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो ये मान लो मैंने प्योर सेमीकंडक्टर है मेरा, राइट, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। In that pure semiconductor, if I add the impurity, then that is become extrinsic semiconductor or impure type of semiconductor. Or if that impurity is a trivalent impurity means in which like a, इसमें हम क्या करते हैं, trivalent impurity ऐड करते हैं। Trivalent impurity means for example aluminum atomic number 13, electronic configuration 283. So here there is outermost electron is 3. That kind of impurity जिसमें क्या रहेगा, outermost electron 3 रहेगा। अब ये जो है मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये प्योर सेमीकंडक्टर है, राइट, जिसमें एवरी सिलिकॉन नेबरिंग सिलिकॉन से बॉन्ड फॉर्म किए हुए। अगर मैं इसमें मान लो ये स्ट्रक्चर ऐसे कंटिन्यू है ऑल दिस साइड से, अगर यहाँ मैंने एल्यूमिनियम ऐड कर दिया, ये मैंने एल्यूमिनियम डाल दिया। अब एल्यूमिनियम डाल दिया तो एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 है, तो वो क्या करेंगे, नेबरिंग सिलिकॉन से बॉन्ड फॉर्म करेंगे। हियर देयर विल बी होल, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ उसने बॉन्ड फॉर्म किया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, बट यहाँ उसका एम्प्टी रह गया, राइट। यहाँ क्या रह गया, होल रह गया। तो यहाँ हम मैं बोल सकती हूँ the number of holes are greater than number of electron, ठीक है, number of holes are greater than number of electron. Now you must have understood कि यहाँ जो रहता है number of electron equals to number of holes था ना। होल्स मतलब you understood ना, होल्स मतलब क्या, जैसे आप अगर बोलते हो Na मेरा एक एटम है और उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया तो आप क्या बोलते हो, उसको Na पॉजिटिव बोलते हो, राइट। तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अगर कम है तो, राइट, तो दैट इज नथिंग बट क्या होगा, जैसे ये जो भी मेरा एटम है, यहाँ मेरे अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो इधर का इलेक्ट्रॉन अगर मैंने निकाला तो इधर एम्प्टी हो गया, मतलब पॉजिटिव हो गया, तो उस एम्प्टी स्पेस को ही हम होल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेर एज इधर हर एक इलेक्ट्रॉन उस होल में है तो नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। ओके स्टूडेंट्स, ये वर्ड ना बहुत ज्यादा आपको सुनाई देगा कि पूछा भी जाएगा कि पी टाइप में व्हाट आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। सो हम बोलते हैं यहाँ द होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इसको क्या बोलते हैं, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज, ठीक है। तो सिमिलरली फॉर एन टाइप वी एड द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। So if I add the pentavalent impurity like a phosphorus atomic number 15, electronic configuration 285, outermost electron is 5, तो इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो नेबरिंग सिलिकॉन से तो बॉन्ड फॉर्म करेंगे, राइट, बट इसमें कितना है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 है। सो इन दिस वे वो दिखेगा जैसे यहाँ मैंने एक सपोज एग्जांपल ले रही हूँ मैं कि यहाँ मैंने फॉस्फोरस ऐड किया हुआ है, राइट। तो यहाँ फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन नेबरिंग 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म करेंगे, बट एक इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो एक्स्ट्रा रहेगा इसमें, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो यहाँ जो ऐसे स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहेगा, राइट, तो यू अज्यूम दिस स्ट्रक्चर इज इन कंटिन्यू लाइक दिस। तो यहाँ जो है
ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ होल। सो हियर द majority charge is majority charge is electron। ठीक है, अभी यहां तक क्या नहीं समझा? शुड आई रिपीट समथिंग? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट्स। ओके, होल क्या है बताती हूँ। सी, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ कि मेरा Na एटम है, ठीक है, तो Na एटम में जो भी 11 इलेक्ट्रॉन्स है ना, Na का एटॉमिक नंबर 11 है। तो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया तो आप ऐसे लिखते हो Na पॉजिटिव लिखते हो उसको, राइट। या फिर अगर क्लोरीन को आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो आप Cl नेगेटिव लिखते हो क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है ना। तो यहाँ जो हम पॉजिटिव लिख रहे हैं ना, मतलब क्या हुआ उस Na एटम में एग्जैक्टली कि उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और उधर एम्प्टी स्पेस बन गया, है ना। अब जब एम्प्टी स्पेस बनता है तो ही उसको पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ही उसको पॉजिटिवली चार्ज बोलते हो या उस पर पॉजिटिव देते हो, है ना। सो वेन एवर द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता हो, जिस उसमें से इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन का स्पेस जो है, जैसे यहाँ अगर मैं बोल रही हूँ इन दिस सिलिकॉन एटम ईच इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें, एक पर्टिकुलर होल में है, हम ऐसे अज्यूम करते हैं, राइट। या पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज हम क्यों देते हैं? इसमें तो एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट रहता है, राइट। पॉजिटिव कौन रहता है? तो हम पॉजिटिव चार्ज क्यों देते हैं? जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो एटम को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, तो वो पॉजिटिवली चार्ज मतलब नथिंग बट होल, उसी को होल बोलते हैं, ठीक है। दैट इज नथिंग बट एम्प्टी स्पेस। जैसे अगर मैं बोलूं मेरा कि Na पॉजिटिव Na चार्ज एक एटम है और इसमें मेरे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन में से मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो एज अ उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, तो वो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो उसकी जगह जो एम्प्टी बन गई ना, एम्प्टी स्पेस रह गई है, तो उसको हम होल बोलते हैं। और जनरली उसको क्या बोलते हैं कि वो Na पे पॉजिटिवली चार्ज आ गया, क्यों? क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो इसीलिए इस पी टाइप को ना हम पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप बोलते हैं, क्योंकि उसमें होल्स रहते हैं, मतलब उस पर पॉजिटिवली चार्ज रहता है। एज एन पॉजिटिवली चार्ज भी अलग तरीके से हम बोल सकते हैं, इसमें पॉजिटिवली चार्ज मेजॉरिटी है, नॉट द नेट पॉजिटिव चार्ज। इस चीज को मैं फिर से समझा देती हूँ आपको, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। वेट, एक मिनट बताती हूँ। देखो क्या रहता है ना, जैसे मैं बोल रही हूँ कि यहाँ मेरा ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी प्योर सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है, हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलरेडी होल में बैठा हुआ है, ठीक है। मतलब मान लो ये मेरा सिलिकॉन है, यहाँ मेरे 2 इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट में मेरे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में मेरे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4। तो उतना ऑलरेडी उसमें स्पेस है, मतलब सिलिकॉन में मान लो कि इतने ही एक स्टेडियम है मान लो इसको, और इस स्टेडियम में इतने ही चेयर्स उसमें फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेडियम, इन द सेंस फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम इतने ही चेयर्स बने हुए हैं, ठीक है। मान लो ईच इलेक्ट्रॉन चेयर्स पे बैठा हुआ है, तो अभी ये इलेक्ट्रॉन अगर चेयर से उठ गया तो चेयर तो उधर बनी हुई है, तो उस चेयर को मैं बोल रही हूँ होल। उसके स्पेस जो एम्प्टी स्पेस, अगर इलेक्ट्रॉन गया तो उधर एम्प्टी स्पेस तो बनी हुई है ना, है ना। तो सिलिकॉन में जो 14 एटम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सिलिकॉन में अभी 13 इलेक्ट्रॉन रह गए। अगर सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन थे, एक निकल गया तो उसमें सिलिकॉन में 13 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो आप लिखते वक्त कैसे लिखते हो? सिलिकॉन पॉजिटिव बन गया ऐसे लिखते हो ना, Na पॉजिटिव, राइट। तो क्यों Na पॉजिटिव लिख दिया? क्योंकि Na ने एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा था उसने डोनेट कर दिया, है ना। तो इसलिए आप उसको Na पॉजिटिव करते हो।
डोनेट करने के बाद ही करते ना, अदरवाइज नहीं लिखते। आप Na को Na ही लिखते हो, बट क्योंकि उसके पास 2 8 1 1 ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इजीली डोनेट कर सकता है, इसलिए उसको पॉजिटिव देते हो। ठीक है। सो ओके, मैं समझा रही हूँ। ठीक है, तो होल मतलब नथिंग बट वो एम्प्टी स्पेस। ठीक है, अभी होल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सिर्फ होल का। ठीक है, तो यहां जो है, जैसे कि मैंने बोला कि सिलिकॉन के पास उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे और उतने ही नंबर ऑफ होल्स रहेंगे। ठीक है। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उधर होल है, इलेक्ट्रॉन निकला तो उधर होल है, मतलब जहां वो बैठा था वो एम्प्टी स्पेस है, जिसको मैंने बोला कि वो चेयर है। राइट। सो हियर जब एल्यूमिनियम उसमें मैंने ऐड कर दिया सिलिकॉन की जगह, तो एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड फॉर्म कर दिया, बट इधर एक होल बचा, इधर एक एम्प्टी स्पेस बचा। राइट। अभी ये एम्प्टी स्पेस बचा तो मैं बोल रही हूँ, क्यों इधर बोल रही हूँ मैं नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ तो सो स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने ये क्यों बोला नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? अगर मैं बोलूं तो एल्यूमिनियम में ऑलरेडी उसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, राइट? बट एज ए रिजल्ट, क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स का कॉम्बिनेशन ले लिया इसमें, तो होल ज्यादा बन गई इधर। ठीक है, होल ज्यादा बन गए। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन के उसके 4 होल और इलेक्ट्रॉन उसके साथ है। राइट। बट क्योंकि मैंने इधर का सिलिकॉन ही निकाल दिया और उसमें एल्यूमिनियम डाल दिया, तो एल्यूमिनियम के पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतने तो है, बट इधर कॉम्बिनेशन के वजह से, बॉन्ड फॉर्म के कॉम्बिनेशन की वजह से होल क्रिएट हुआ। उधर एक्चुअली कोई इलेक्ट्रॉन निकाल के होल नहीं बना हुआ है। समझ रहे हो आप? तो इसीलिए होल ज्यादा है। हम जब Na से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको Na पॉजिटिव बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन निकाला, राइट? बट दिस इज ओवरऑल न्यूट्रल इन नेचर, दिस इज न्यूट्रल इन नेचर। व्हाई इट इज न्यूट्रल इन नेचर? बिकॉज इसका कोई भी एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव नहीं किया, या सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव नहीं किया। हमने सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के कॉम्बिनेशन किया, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, उसमें नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर हुए। रिमेंबर, ये तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स गलत आंसर देते जब भी हम पूछते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो तुरंत आंसर आ जाता है पॉजिटिव। नो, इट इज नॉट अ पॉजिटिव, इट इज अ न्यूट्रल। व्हाई इट इज न्यूट्रल? देखो, Na को पॉजिटिव कब बोल रहे हैं? जब इसका इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिया मैंने पूरा। ठीक है, इधर क्या मैंने ये एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन निकाले हैं? नहीं, उसके एल्यूमिनियम के पूरे उसके साथ है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 उस उधर ही है, इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। राइट। सिलिकॉन के किसी के इलेक्ट्रॉन निकाले? नहीं, सब सिलिकॉन की इधर ही प्रेजेंट है, कोई भी इलेक्ट्रॉन निकाल के मैंने फेंका नहीं है इधर से। तो दिस इज न्यूट्रल इन नेचर, बट इसमें नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर। व्हाई नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर? बिकॉज मैंने इधर सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम डाल दिया, तो इधर डिफिशियंसी हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए यह पॉजिटिवली, नेट पॉजिटिवली चार्ज, और यू कैन से नेट होल्स आर ग्रेटर, यू कैन से होल्स आर ग्रेटर, यू कैन से पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रेटर। बट इसमें जो रिजल्टेंट चार्ज है या रिजल्टेंट उसका नेचर है, इट इज न्यूट्रल। क्या ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है? देखो, पी टाइप में भी क्या हो रहा है, एन टाइप में भी क्या हो रहा है। मैंने इसमें फॉस्फोरस डाल दिया। ठीक है, एटॉमिक नंबर 5 होता है। अब इसमें फॉस्फोरस में 4 इलेक्ट्रॉन, नेबरिंग 4 इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड फॉर्म कर गए, राइट? बट एक इलेक्ट्रॉन बचा। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा तो इसमें मेजोरिटी कितना हुआ? इलेक्ट्रॉन का हुआ, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से। जैसे इधर एक्स्ट्रा होल्स से इधर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, राइट? बट ये भी न्यूट्रल होगा, एन भी न्यूट्रल होगा।
क्योंकि इसमें से किसी भी का हमने इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं है, ना इसको इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया है, वो फास्फोरस का अपना इलेक्ट्रॉन है, राइट। और जब तक आप एक्स्ट्रा कहीं और से एक इलेक्ट्रॉन उसमें डालते नहीं, तब तक उस पे नेट नेगेटिव चार्ज नहीं आता है ना। तो यहाँ इट इज न्यूट्रल इन नेचर, वेयर एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर, वो ईयर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर बट द ओवरऑल नेचर इज न्यूट्रल। और हम ये वाइवा में जब भी 12th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन पूछते हैं तो हमेशा मतलब वेरी फ्यू स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे पाते हैं, बाकी सब यही बोल देते हैं ओके पी इज इन पॉजिटिव इन नेचर, एन इज इन नेगेटिव इन नेचर। नो, इट इज नॉट अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन नेचर, बोथ आर न्यूट्रल इन नेचर, बट इन पी टाइप द होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर आर ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इन एन टाइप द electrons are majority charge carrier and the number of electrons are greater than that of hole. रिमेंबर स्टूडेंट्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी डिवाइसेस बन रहे हैं ना, डायोड बोलो, ट्रांजिस्टर बोलो, एलईडीज बोलो, वो सब इन दोनों से बन रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, ये ना आईआईटी स्टडीज में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है, मतलब जहां तक अभी तक का एक्सपीरियंस है, हर साल हर स्टूडेंट्स बोलते हैं हमें एट द एंड में सेमीकंडक्टर पढ़ा दो, आईआईटी में इतना डिटेल में नहीं होता जितना आपको बोर्ड्स में है। मतलब बोर्ड्स में ज्यादा पोर्शन है सेमीकंडक्टर का, ऐसा होगा या तो आईआईटी में कम पूछा जाता होगा, उसको वेटेज नहीं रहता होगा। बट हर साल हमें ये सेमीकंडक्टर का हमने देखा है कि आईआईटी स्टडीज में आज सच आपका अच्छे से नहीं होता है, वो सिर्फ बोर्ड में होता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जैसे कि मैंने बोला प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे वो इस पीएन से ही जनरेट होते हैं, इस सेमीकंडक्टर से ही बनते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। और जब आपको ये बेसिक चीजें पता होगी ना, तो आप वो चीजें बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे आगे वाली। अगर इधर ही आप मतलब कंफ्यूज रहोगे ना, अरे किधर से होल आया, कैसे इलेक्ट्रॉन आया, या फिर इधर ऐसे कैसे चीजें हो रही है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। बेसिकली ये कंसेप्ट कि ये जो है इसमें मेजॉरिटी होल है, इसका मतलब नहीं कि ये पॉजिटिव इन नेचर है, इन नेचर इट इज न्यूट्रल, बट नहीं मेजॉरिटी इज होल, बिकॉज इसके पास नंबर ऑफ होल ज्यादा है, ठीक है। इसका कोई भी हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किया है। देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स के कॉम्बिनेशन से होल क्रिएट हुआ है। इधर भी वैसे दो एटम के कॉम्बिनेशन से वहां इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ है, या द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन एंड बट इट इज न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है पीएन जंक्शन। तो यहां से स्टार्ट होता है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, अभी सबसे पहले आया आपका डायोड, जो कंपोनेंट्स बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो उसमें हम क्या करते हैं, ऐसा पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया और उसको पास में लेके आए। मान लो इसमें पूरा पी टाइप है, अभी पी टाइप है मतलब होल्स आर मेजोरिटी। अब डिनोट करते वक्त मैं ऐसे ही दिखाऊंगी प्लस प्लस प्लस। इसका मतलब आपको क्या विजुअलाइज करना है, ये जिसमें एल्यूमिनियम है और इसको मैं अगर प्लस बोल रही हूँ इस होल को, ठीक है। तो ऐसे इधर कुछ ऐसे रैंडमली मैंने एल्यूमिनियम डाले, बट सब वो सिलिकॉन के एक टैंक में, मान लो कि जैसे सिलिकॉन में मैंने उसको ऐड किया हुआ है, डोप किया हुआ है। इसको बोलते हैं डोपिंग, एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी इज कॉल्ड डोपिंग, ठीक है। तो ये जो डोपेंट है जिसको मैंने ऐड किया, तो ये डोपिंग किया इन सिलिकॉन। तो ये इसका मतलब क्या है, ये होल्स है, बट इसमें क्या है, ऑब्वियसली सिलिकॉन भी है, एल्यूमिनियम भी है, उसके इलेक्ट्रॉन्स भी है, बट मैं सिर्फ होल्स दिखा रही। यहाँ मैं एन टाइप में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स दिखाऊंगी। इसका मतलब क्या है, इसमें सिलिकॉन है, वो फॉस्फोरस भी है जो मैंने डाला हुआ है, और उसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए वही मैं दिखा रही हूँ, ये ठीक है। बट इसमें सब कुछ है। अब मैं इसमें पूरा स्ट्रक्चर तो ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ, राइट। तो मैं ऐसे दिखाऊंगी, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड। और इसके आगे क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो जब आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स तो थोड़ा विजुअलाइज करना चाहिए, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए। जब भी पॉजिटिव है इसका मतलब सिर्फ उधर पॉजिटिव नहीं घूम रहे, उधर सिलिकॉन्स भी है जो है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। बट दिखाते वक्त मैं सिर्फ ये होल्स दिखा रही हूँ, इसका सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिखा रही हूँ, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली इसमें सब कुछ है।
ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल सी इन अ नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तब तक आप थोड़ा ये पढ़ लेना, कहाँ से कहाँ तक मैं बता देती हूँ। सी दिस इज अ बैंड थ्योरी, जिसमें हियर इट इज अ कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का इधर तीनों का एक्सप्लेन किया हुआ है। ये रीड करना है, इंट्रेंसिक रीड कर लेना। मैं इसलिए भी बोल रही बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको दिया है प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, यहाँ इम्प्योर एन टाइप एंड पी टाइप का दिया हुआ है। तो एन टाइप एंड पी टाइप तक आप पूरा रीड कर लेना। ठीक है, पी टाइप तक पूरा रीड कर लेना। पीएन जंक्शन ऑनवर्ड्स मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।